ओके। नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस तथा कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर वीएचपी एसोसिएशन थाईलैंड की तरफ से मैं राजू मनवानी आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ को होस्ट हैं श्रीमती वैशाली उरुमकर जी। वैशाली जी, नमस्ते। वीएचपी एसोसिएशन थाईलैंड की नो योर ट्रेडिशन श्रृंखला में आप सभी को यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको साध्वी ऋतुम्बरा जी, जिनको हम प्यार से दीदी माँ कह के बुलाते हैं, उनसे मिलवा रही हूँ। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा जी एक प्रख्यात अध्यात्मवादी और पवित्र भूमि भारत से प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहे। परम पूज्य दीदी माँ जी दो मुख्य बातों का समर्थन करती है। सबसे पहले उन बच्चों को दिव्य मातृत्व प्रदान करना जो किसी कारणवश अपने माताओं से मातृत्व त्याग दिए जाते हैं, और दूसरा वर्तमान परिस्थितियों में देशभक्ति का माहौल बनाना है। दीदी माँ वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन में विश्वास करती है। उनका महिला सशक्तिकरण में दृढ़ विश्वास है और उनके दुर्गा वाहिनी के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। दीदी माँ की सबसे उल्लेखनीय कृति है वात्सल्य ग्राम, मातृ प्रेम का गांव। उस गांव ने परित्यक्त बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बूढ़ी महिलाओं के लिए परिवार की एक अनूठी अवधान विकसित की है। दीदी माँ का वात्सल्य शिक्षा अभियान एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल संवित गुरुकुलम के माध्यम से बेहतर शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने का एक अनूठा तरीका है। दीदी माँ का राम जन्मभूमि में भी बड़ा योगदान है। दीदी माँ, आपका वीएचपी एसोसिएशन थाईलैंड की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। We are highly privileged to have with us today Shri Milind Shrikant Parande ji. Shri Milind ji is the General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad. Graduating with a Master's in Science from Mumbai University, or Bombay University as it was then called, he proceeded to the US to do research work. However, within 2 years, Mathrubhumi called him back and he joined the VHP in 1989. Not long after, in 1990, he devoted his full time and life to the Vishwa Hindu Parishad. Those were indeed good times, and I do remember that Sri Milinji was here in Bangkok with us in the year 2019, and he impressed one and all with the way he spoke about different matters at hand. We are glad to have with us Sri Milinji, and hope we can be face to face together very soon. Our third guest today is not a guest at all, actually. Shri Sushil Sarabji is a self-made and highly respected businessman in Thailand. Firstly, let us congratulate Shri Sushilji, as he is now asked to serve as the Vice President of the Vishwa Hindu Parishad Bharat, and is also on the Board of Trustees and the Governing Council.
We at VHP Thailand rejoice with you. He is also the president of the VHP Association Thailand since 2009 and has done tremendous work with us. He is also the chairperson of the next session of the World Hindu Congress, which will be held in Thailand in the near future. He has had successful tenures as the president of the India Thai Chamber of Commerce and has been a director and advisor to the Board of Trade of Thailand. Sri Sushil ji has also been awarded with the Pravasi Bharatiya Samman Award in the year 2017 by the President of India. He firmly believes in Seva Parmo Dharmaha. He will be our guest, but as our Pradhan, we would also expect him to raise some questions on our behalf. With the Sanatani idea that the world is one family, it seems very nice that not only besides being a worldly family, we are also together as a part of a smaller VHP family. And I welcome you all on behalf of the VHP Thailand. दीदी माँ, मैं राजू मनवानी बैंकॉक से। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे है। अच्छा। अभी सुशील जी ने बताया, उन्होंने एक बड़ा बैज पहना हुआ था पॉकेट पे जिसपे VHP का लोगो था और उस पे लिखा हुआ था धर्मो रक्षति रक्षतः। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका हमें मतलब समझाइए और आज के माहौल में इसका क्या इम्पोर्टेंस है आजकल के हिंदुओं के लिए, आजकल के यूथ के लिए। इसका मतलब आप अगर हमें समझा सकें तो धन्यवाद। ये तो स्वयं में ही स्पष्ट अर्थ है। जब हम परंपरा का, मान्यताओं का रक्षण करते हैं तो वो हमारी रक्षा करती है। जिसको हम स्थापित कर देते हैं कि उसके माध्यम से हमारी दिनचर्या, हमारी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था चलेगी, तो इस तरह हमने उसको धर्म कहा। जैसे पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म। इसी तरह माता पिता का अपनी संतानों के प्रति धर्म, संतानों का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, सभी देश के नागरिकों का राष्ट्र की भूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी व्यवस्था और संस्कृति परंपरा के प्रति अपना धर्म। तो ये जब मान्यताएं और परंपराओं को धर्म के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, फिर हम जब उसकी रक्षा करते हैं तब वो हमारी रक्षा करती है। इसी तरह जैसे सर्दियों में सर्दी के बहुत ज्यादा सर्दी से हमारे शरीर की रक्षा गर्म कपड़े करते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी बीतती है तब हम उन गर्म कपड़ों को ड्राई क्लीन करवा के उसमें कीड़े ना लग जाएं, ऐसी कुछ दवाइयां डाल के और उसको व्यवस्थित सुरक्षित रख देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कपड़े नष्ट हो जाएंगे और फिर सर्दी में वो हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जिस कवच को पहनकर हमने अपनी रक्षा करनी है, उस कवच की रक्षा भी करनी होती है। इसी तरह धर्म का रक्षण इसलिए जरूरी हो जाता है कि फिर वो धर्म हमारी रक्षा करता है जब हम उस मान्यता को प्रतिष्ठा देते हैं। जैसे कि अगर पति पत्नी साथ में नहीं है, लेकिन पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ होने का, एक दूसरे के प्रति जो है वो ईमानदार होने का जब धर्म निभाते हैं तो उनकी रक्षा हो जाती है, उनके चरित्र की रक्षा हो जाती है, उनकी नैतिकता की रक्षा हो जाती है और उनके दिल में, हृदय में किसी भी तरह की का पाप का बोझ नहीं होता और उनके मन में, अंतःकरण में किसी भी तरह की पाप ग्रंथि का जन्म नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो निर्बोझ जिए और प्रसन्नता से जिए, आनंद से जिए। और जब वो इन सारी ग्रंथियों से मुक्त होता है, सारी ग्रंथियों से मुक्त कब होगा? जब वो धर्म को मान्यता देगा, धर्म को जीवन में धारण करेगा। और जब कभी उस धर्म पर चोट आएगी तो वो आगे बढ़कर उसका रक्षण करेगा कि नहीं, ये सारी व्यवस्था मेरे अपने सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक ही नहीं, पारिवारिक ही नहीं, अपितु यहाँ तक कि राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक तल पर ये सब मेरी रक्षा करते हैं। इस दृष्टि से हम उन सारी व्यवस्थाओं के प्रति सन्नद्ध रहते हैं, सजग रहते हैं। और हमारे देश में, अतीत के भारत में तो आप समझ लो कि अनजाने में भी अगर धर्म की हानि हो जाती थी हमारे द्वारा तो हम उसका प्रायश्चित करते थे, पश्चाताप करते थे और फिर उसको
कोशिश करते थे कि हम उससे प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके पुनः धर्म को धारण कर लें, ताकि फिर धर्म हमें धारण करे। इस दृष्टि से जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म भी हमारी रक्षा करता है। बहुत अच्छे से समझाया दीदी माँ आपने। दीदी माँ, आप दुर्गा वाहिनी से जुड़ी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दुर्गा वाहिनी की स्थापना 1991 में हुई थी। दुर्गा वाहिनी की क्या उपलब्धियां हैं, आप इसके बारे में अगर हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा है वैशाली, जब भी कभी आप देखोगे जवानी का जो तेज होता है, वो जो होता है, ऊर्जा होती है, वो एक बहुत वेगवान होती है। और तरुणाई की तो अपने आप में जो है वो गूंज होने लगती है कि भाई अब जवानी चढ़ गई है, तरुणाई आ गई है। और उस समय जो है जोश बहुत होता है, और उस जोश के समय में अगर मार्गदर्शन का, अगर पथ प्रदर्शन का और पथिक को बोध हो जाए, और तब फिर उसके साथ होश मिल जाता है। दुर्गा वाहिनी की स्थापना जब हुई, उसके पीछे यही दृष्टिकोण था कि जोश के साथ पुत्रियों में होश रहे। एक और विषय था कि पूरे समय शरीर पे चोट खाना या अपनी चेतना पे खरोंच खाना, किसी दूसरे के द्वारा धर्षित, दूसरे के द्वारा अपमानित होना, या सिर्फ शरीर समझे जाने वाली दृष्टिकोण से आहत होकर व्याकुल होना, और फिर असहाय एक व्याकुल मृगी की तरह किसी दूसरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखना कि हमारी रक्षा हो, ये तो उचित नहीं है। इसीलिए जो स्वयं सिद्धा है, भले ही वो अपने भाई की हथेली कलाई पे रक्षा सूत्र बांध के कहती है कि भैया मेरी रक्षा करना, लेकिन आप पूरे समय देखोगे कि पुत्रियां ही, बहनें ही अपने भाई की रक्षा करती दिखाई देती हैं, उसकी भावनाओं की रक्षा करती हैं, और जहां कहीं वो चूकता है उसे सजग करके उसकी रक्षा करती हैं, और जो बात वो अपने माँ पिता से नहीं कह पाता वो अपनी भगनी से मार्गदर्शन लेकर जो है अपना मार्ग प्रशस्त करता है। तो ऐसी ऐसी बेटियां, वो बीच में इस तरह का वातावरण बना कि वो जगह जगह असहायता और व्याकुलता, फिर दहेज की बलि बेदियों पे चढ़ना, और फिर बलात्कारियों के द्वारा आहत होना, छेड़खानी का शिकार होके व्याकुल होना, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करना। तो फिर दुर्गा वाहिनी का ये जो स्थापन हुआ, उसके पीछे यही दृष्टि रही कि भारत की सारी बेटियां दुर्गाएं हैं। और आप देखो, दुर्गा का अपना एक स्वरूप होता है। सभी देवता अपनी अपनी तरह अपने वाहनों का चयन करते। विष्णु भगवान गरुड़ पर आरूढ़ है, शंकर भगवान बैल पर आरूढ़ है, गणपति जी तो मूसक पर आरूढ़ है, और कार्तिकेय स्वामी तो मोर पर आरूढ़ है, लेकिन दुर्गा तो शेर पर आरूढ़ है। जो सिंह की सवारी कर ले वो कैसी शक्ति होगी। पर उस शक्ति को जब अपनी शक्ति याद नहीं होती, तब फिर वो दूसरे की मुखापेक्षी होती है। इस दृष्टि से पूरे भारत के अंदर बेटियां दुर्गा का रूप धारण करें, और पापियों को सही समय पे उचित तरीके से सबक भी सिखाएं, और उनकी ऊर्जा धर्म की रक्षा में हो। आप आश्चर्य करेंगी वैशाली जी, श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था, अयोध्या में आह्वान हुआ था, 50,000 तरुणियां जो कॉलेज की विद्यार्थी थी, वो मेरे साथ अयोध्या की गलियों में, जब जय श्री राम की गूंजों से उन्होंने अयोध्या की गलियों को धन्य कर दिया था। पूरे विश्व ने उस दृश्य को देखा था कि किस तरह तरुणाई भी धर्म को समर्पित होती है। दिशा की ही तो जरूरत है, और जगह जगह प्रशिक्षण होना, बहुत कठिन कठोर प्रशिक्षण में से पुत्रियां निकलती हैं, और उसके बीच में राष्ट्रीय बोध जगाया जाता है। और यही तक नहीं कि वो बाहर जाके कमाएंगी तो बहुत सारी उलाहने सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी विधा आ जाना कि अपने पति का भी हाथ बटाना, लेकिन अपनी संतानों को भी शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदाल सा वाक्य मुवाच पुत्रम, अपने घर को घर बनाने की सामर्थ्य, पिता के गौरव और मान की रक्षा, अपने दोनों घरों की कुलों की जिम्मेदारी, और अगर देश धर्म भी पुकारे
तो सीना तान के खड़े हो जाना। ऐसी तेजस्वी जाज्वल ऐसी 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 जिनको देख के गौरव हो, ऐसी पुत्रियां। क्योंकि वो जो कॉलेज के दरवाजों पर सिगरेट के धुएं उड़ाती हुई और अपने बॉयफ्रेंड की प्रतीक्षा में, ऐसी बेटियों की भारत ने कभी कभी कल्पना नहीं की थी। दुर्गा वाहिनी उस माध्यम से भारत की तरुणाई को, तरुण बेटियों को इस दिशा में कि उसका अपना एक गौरव है, उसकी अपनी एक पहचान है। हाँ, वो डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी बन के इज्जत पा लेती है, लेकिन अब वो खुद भी डॉक्टर बनेगी, अब वो खुद भी अपनी पहचान के साथ जिएगी। लेकिन उसका जीना बरसाती नदी नाले जैसा नहीं होगा, उसकी जिंदगी एक गहरी गंगा जैसी होगी, जिसके साथ उसके पास दोनों कुलों की मर्यादा की रक्षा की सामर्थ्य होगी। इस दृष्टि से दुर्गा वाहिनी का स्थापन हुआ, दुर्गा वाहिनी का कार्य हुआ। फिर यही दुर्गाएं आगे चल के विभिन्न संगठनों में अपनी भूमिका निभाती हैं, और कभी अवसर मिले तो राजनीति के क्षेत्र में भी जाकर जाज्वल्यमान भूमिका निभाती है। क्योंकि दुर्गा वाहिनी के माध्यम से उनका आधार, उनका बुनियाद तैयार हो जाती है। और बुनियाद हमारी यही है, हमारे पास तात्विक जो आधार है वो राष्ट्रबोध है, वो राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, वो अधिकारों की लालसा नहीं है, वो कर्तव्यों का परिश्रम और तप है। ये बुनियाद में डाल दिया जाता है, उसके मन के अंदर बो दिया जाता है। दुर्गा वाहिनी में जैसे ही वो फिर आगे आगे फिर उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है, इस तरह दुर्गा वाहिनी का स्वरूप है। और मेरा सौभाग्य है वैशाली, मैंने दुर्गा वाहिनी का राष्ट्रीय दृष्टि से भी जो है नेतृत्व किया, और पूरे भारत के अंदर मैं दुर्गा वाहिनी के शिविरों में और तरुणियों के बीच में, देखो मुझे नहीं पता, बहुत लोग धन्य होते होंगे पद्म विभूषित होकर, धन्य होते हैं, रत्न पाते हैं, भारत रत्न ना। लेकिन हम तो अपने भारत के तरुण और तरुणियों को जब देख लेते हैं, लगता है यही है भारत के रत्न, जो भारत के चेहरे पर आभा लाएंगे, भारत के चेहरे को रोशन करेंगे, भारत को भारत के रूप में स्थापित करेंगे। तो इस तरह मूल कुछ विषयों को लेकर दुर्गा वाहिनी का अपने स्वयं की रक्षा, सबकी रक्षा, और मुखापेक्षी नहीं होना। ये उचित नहीं है कि बाहर से तो पुरुषों जैसा भेष धारण कर ले और अंदर से भयभीत मृगी जैसा दिल धकपक करे, वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो शौर्य भीतर से जागृत हो, शक्ति स्वरूपा स्वयं सिद्धा बनकर वो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सके। पर वो मर्यादा भारत निश्चित करता है, जो धर्म निश्चित करता है, जो धर्म की मर्यादा किसी नारी को सती बनाती है, सावित्री बनाती है, सीता बनाती है, मंदालसा बनाती है, वो मान बिंदु सामने रख के कार्य करना। इस दृष्टि से दुर्गा वाहिनी का कार्य बहुत सुंदर तरीके से वैशाली हमारे देश में स्थापित हुआ। दीदी मैं क्या बोलूं आपको, मुझे ये पता था कि महिलाएं दुर्गा है, लेकिन इतनी अच्छे से आपने समझाया है तो और प्राउड फील हो रहा है कि हाँ हम दुर्गा है। तो दीदी माँ मेरा और एक ये है कि हिंदू जागरण का राम जन्मभूमि में क्या महत्व है। और दीदी माँ जैसे कि आप राम जन्मभूमि को बहुत करीब से जुड़ी है, तो आप क्या इसके बारे में विवरण दे सकती हैं हमें? ऐसा था वैशाली कि पूरे भारत के अंदर ये नहीं हम कह सकते कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने बीजों को डाला। बीज तो हमारे पास सनातन का है, लेकिन अगर बीज को खाद नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, संरक्षण नहीं मिलता, तो वो अंकुरित नहीं हो पाता। हमारे पास युगों युगों से सनातन की परंपरा का बीज है। हमारे पास वेदना भी थी, और लंबे काल की वेदना थी, लंबे गुलामी के काल की वेदना थी, अपने स्वरूप को छुपाकर जीने की कोशिशों की वेदना थी। हमारे पुरखों का इतना बड़ा जो है वो संघर्ष था, हमारी माताओं का संघर्ष था, संतों के बलिदान थे, छोटी छोटी संतानों के बलिदान थे, माताओं के बलिदान, उसका दर्द हमारे पास था। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के माध्यम से हमको वो अवसर मिल गया कि वो जो छटपटाहट थी, वो जो तड़प थी, वो जो व्याकुलता थी,
वो जो अंदर कसमसाहट थी, वो जो अपने आप को स्थापित करने की बेचैनी थी, उसको अवसर मिल गया। और आप समझ लीजिए वैशाली, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन संगठनों की योजना से शुरू हुआ, पर वो संगठनों की सीमा में नहीं रहा, वो सीमाएं टूट गई। जिसको कहते हैं ना, आजादी के बाद का कोई जन आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन तो बहुत बार हुए, लेकिन कोई जन आंदोलन बना तो वो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन। और हिंदू जागरण का ऐसा स्वरूप जागृत हुआ, संतों का नेतृत्व था वैशाली, ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने कभी बाहर निकल के नहीं देखा था, गंगा के किनारे की झाड़ियों में जो रहते थे, सिर्फ शाम को भिक्षा करने के लिए आते थे। ऐसे विरक्त संत जो कहते थे हम निर्विकल्प हैं, यानी हमारे में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, उन संतों के चित्त में भी मंदिर का संकल्प जागृत हो गया। सोचिए, विरक्तों के द्वारा संकल्पित हो जाना। और माननीय अशोक जी के माध्यम से संत एक साथ आए। बड़ा ये चर्चा होती थी कि धर्म नेताओं का, यानी धर्म महापीठों के महापुरुषों का एक साथ बैठना, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कुछ भी भेद रहता है, वो सारी दीवारें टूट गई। हिंदू जागरण का ऐसा कार्य हुआ कि पूरे देश के अंदर मंडल के वातावरण की ऐसी तपस थी जिसने आग लगा दी थी हिंदुस्तान में, भारत में। और वो मंडल की आग धधक रही थी, जिसमें जवानियां झुलस रही थी, हमारे प्रीत के ताने बाने टूट रहे थे। और ऐसे समय में जब संत कमंडल लेकर निकले और जब उनके पीछे पीछे देश की जवानियां, तरुणाइयां, देश की सारी राजनीतिक जो शुद्धता के साथ थी, उनका मन भी करता था कि नहीं, ये कार्य होना चाहिए। तो वो एक वातावरण बना और उसने भारत के श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने भारत की राजनीति और राजनेताओं की दिशा बदल दी। जहां हम असहाय थे, गिड़गिड़ाते थे, दूसरों की तरफ देखते थे, वहां हम ताकत बन गए। और संत कहते थे कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी का मुखापेक्षी नहीं होना, हमें एक शक्ति बनना है, हम चाहेंगे तो होगा, हम चाह तो ले। श्री राम जन्मभूमि में हिंदू जागरण का यह प्रसाद है कि हिंदू ने चाहना शुरू कर दिया, वो संकल्प करने लगा कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं देखूंगा नहीं, उसे प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं जो है श्रम ही नहीं करूंगा, बलिदान दूंगा भी, और बलिदान हो जाने की जो मेरी सामर्थ्य है उसको प्रकट करूंगा। तो वो हिंदू जागरण, मैं समझती हूँ श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन अयोध्या की सीमा तक तो मंदिर बनेगा ना, पर तन मन में रोम रोम में बसे राम को हिंदू जागरण के उस दृश्य ने जागृत कर दिया। सारे विश्व के अंदर हिंदू स्वाभिमान के, मरे हुए स्वाभिमान के, कुचले हुए स्वाभिमान के, मृत प्राय स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा हो गई हिंदू जागरण के कारण। तो ये श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, तो अब इसकी बात करोगे ना वैशाली, तो मेरा रोम रोम जो है ना फिर द्रवित होने लगता है, फिर बात कुछ और हो जाती है, फिर बात बहुत लंबी हो जाती है। कुल मिलाकर विषय ये है कि ये तो ज्वाला थी, ये राख में दबी हुई थी, 500 वर्ष की इसमें आहुतियां थी। और जब श्री राम जन्मभूमि के विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन ने इसमें जरा सी चिंगारी दिखाई, तो ये ज्वाला ऐसी धधकी कि इसने भारत नहीं, विश्व के आसमान पे एक सात्विक प्रकाश को प्रकट कर दिया। और सारे संसार ने देखा कि हम केवल माला पकड़ के भजन करने वाले भजनीय ही नहीं है, अगर हम चाह ले तो हमारे पास धैर्य बहुत है, पर अगर जरूरत पड़े तो हमारा शौर्य भी जब प्रखरता से प्रकट होता है तो फिर आंख मिलाना मुश्किल हो जाता है। ये स्वरूप सारे संसार में हिंदू जागरण के प्रताप से हिंदू समाज का देखा वैशाली। इसका अपना एक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। दीदी माँ, इसी विषय पे मैं लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन अगर आप देखें तो जो सनातनी धर्म के आलोचक हैं आज, उनमें कई हिंदू हैं, तो इसका क्या कारण है? वो, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे देश के अंदर ऐसा एक बीमारी है कि जब आपको अपनी प्रतिष्ठा पानी हो राजनीतिक गलियारों में, तो फिर आपको सेक्युलर बन के दिखाना पड़ता है। इसकी बीमारी लगी, फिर अब इसकी आदत ही हो गई है।
और बहुत सारे सच्चों को छुपाकर अपना फेक मुंह दिखाना। मैं आपको बता रही हूँ कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम जब कभी ट्रेन वगैरह पकड़ने स्टेशन पे जाते थे, तो दूसरी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता अगर रास्ते में पड़ गया तो दौड़ के आता था, पैर छू के कहता था, साध्वी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसका अर्थ क्या है? आप अंदर से चाहते क्या हो, पर आप राजनीतिक लाभ के लिए कर क्या रहे हो? ये दोगलापन, ये दोहरे चेहरे। तो हमारे देश में ऐसा एक ट्रेंड बन गया, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि आपको फिर दोनों तरह की बात, ईश्वर अल्लाह दोनों तरह की बातें आपको करनी है। और जब अगर आप खाली हिंदू की बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस तरह करके ये लंबे आजादी के पहले से लेके आजादी के बाद तक ये वितंडावाद देश के अंदर चला, और इस तरह बहुत सारे लोगों की दुकानें चलने लगी। हिंदू को गाली दे के दुकान चलने लगी, हिंदू का अपमान करके दुकान चलने लगी। और आप देखिए कि हमारे आंदोलन के भी बहुत विरोधी, कोई बहुत सारे मुसलमान हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में उसमें हिंदू नेता ही भरे हुए हैं। तो दलगत और पार्टीगत या फिर पैसे और पद और प्रतिष्ठाओं की लालसा ने व्यक्ति, और फिर बहुत नहीं होते ये लोग, बहुत नहीं होते, समाज ऐसा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि बस पे जो चढ़े हैं, स्टेयरिंग जिसके हाथ में है, बस तो उधर ही जाएगी ना, तो दिशा जो दिखाएगा। तो इस तरह के कुछ लोग भी हैं, लेकिन अब बदल गया है। अब तो लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं, और कभी कभी हिंदू पना दिखाने के लिए बहुत सारे ड्रामे भी करने पड़ रहे हैं। अब बदल गया है भारत, अब बदल गया है। लेकिन ये जो है ये बहुत दुखद है कि ना तो अपने धर्म को समझा। देखिए आप कितना बड़ा हिंदू समाज है जिन्होंने क्या अपने धर्म को समझा है। अगर अपने धर्म को समझते तो धर्म के प्रति वो गौरव रहता। दूसरी बात ये है कि जो दूसरा पक्ष है वो हमें हीन भावना से ग्रसित करने का प्रयत्न करता है, और हम फटाफट बैक गियर लगाते हैं, क्योंकि हमारा अपनी उस पर पकड़ नहीं है। अगर उस पर पकड़ हो तो फिर हम उसको उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो इस तरह की बातचीत करते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए अपने घर की जोत से कभी कभी घर का मंदिर भी जल जाता है। हमने तो इतिहास में भी देखा है कि चंद लोग रहे देश के अंदर जो गद्दार रहे, उनके कारण शत्रु प्रबल होता रहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारी सज्जन शक्तियां सक्रिय नहीं है, वो सब सक्रिय हैं। और मैं तो समझती हूँ ये प्रवाह ऐसा है जिसमें सारा कचरा जो है बह जाएगा या तो किनारे हो जाएगा। इसलिए वैचारिक दृष्टि से हमारी स्पष्टता, उसके प्रति हमारी निष्ठा, क्योंकि वो सच के आधार पर है, वो किसी पर अत्याचार नहीं करती, वो सब सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखती है। हम कभी किसी दूसरे की जमीन पे खेती करके खुशी अनुभव नहीं करते। हमें नहीं लालसा है, ना जमीनों की ना जायदादों की। इतिहास भरा पड़ा है, युद्धों के बाद भी हमने कभी ऐसे अतिक्रमण किसी दूसरे की भूमि पे नहीं किए। हाँ, अपनी भूमि देख के भी हमने समाधान तलाशे हैं। तो ऐसी सनातनी परंपरा जो सच्चाई के आधार पर खड़ी है, उसके प्रति निष्ठा रख के उसके पक्षधर बनना, उसके साथ प्रबलता से खड़े रहना, ये बहुत जरूरी है। अब उन विघ्न संतोषियों की बात करके कोई फायदा नहीं है। दीदी माँ आपसे मैं क्वेश्चन करूँ इसमें दीदी माँ को थोड़ा सा। मैं दीदी माँ से चाहता हूँ, आप वृंदावन में रहती हैं, कृष्ण जी के रासलीला की जगह पर, तो आज के समाज में, आज के जीवन में हमको कृष्ण जी के चरित्र से अपने युवा लोग को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? और आप तो जन्म जी के जन्म स्थान, कृष्ण जी के जन्म स्थान पे हैं, और उसका उद्धार आप कब करने वाली हैं? इसमें भी अगर कुछ प्रकाश डालें तो। सुशील जी, सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण के जो असली स्वरूप है उसको जन जन के हृदय में स्थापित करने की जरूरत है। तो भगवान के बाल स्वरूप की बहुत पूजा होती है और बहुत वो प्रिय है उनकी बाल लीलाओं का चिंतन। तो लेकिन वो योगेश्वर श्री कृष्ण, गीता के गायक श्री कृष्ण, युद्धों की रचना रचने वाले श्री कृष्ण, और युद्धों में भी निवृत्त होकर खड़े श्री कृष्ण, सब में रहकर सबसे अलग श्री कृष्ण, गए जब शाम गोकुल से नहीं फिर लौट कर आए, रही गोपियां खड़ी रोती किनारा हो तो ऐसा।
विस्तार करने वाले कृष्ण और विस्तार में भी निर्विचार खड़े कृष्ण, किनारा करने की विधा जानने वाले कृष्ण, रणनीति बनाकर रणनीतियों पर चलने वाले श्री कृष्ण, युद्ध छोड़कर रण छोड़ राय कहलाने वाले नहीं, बल्कि समुद्र के किनारे तक संघर्षों के मैदान प्रशस्त करने वाले श्री कृष्ण, दुष्टों के लिए दर्शन चक्र चलाते हुए, अप्रेमियों के बीच में बांसुरी बजाते हुए पूर्ण श्री कृष्ण, पूर्ण श्री कृष्ण का अंगीकार करना पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि करुणा भी चाहिए और वीरता भी चाहिए। अगर जीवन में प्रेम की बंसी ना बजी तो पूरे समय सुदर्शन चक्र घायल कर देता है। इसलिए मात्र संघर्षों से बात नहीं बनती और मात्र प्रेमी हो जाने से भी बात नहीं बनती। तो भगवान के, इसलिए भगवान को पूर्ण अवतार माना गया है। तो उनके पूर्ण अवतार की, पूर्ण व्यक्तित्व की, जिसमें कोई आप न्यूनता नहीं देख पाओगे, वो हर जगह पे फिट होते हैं, वो चाहे रास हो, वो चाहे युद्ध। आप कल्पना कीजिए कि जो विरक्त है, अगर आप उसके होठों पे बंसरी रख दोगे तो आपको बिल्कुल नहीं भाएगा। आप कहोगे अरे ये कैसे, ये तो विरक्त है, ये बंसी बजा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु, वो अगर युद्धों के बीच में खड़े हैं तो उनकी होठों पे जब बांसुरी जब बजती है, मुरली बजती है, तो दिशाएं झंकृत हो जाती हैं। तो उनको पूर्ण कहा है। तो ऐसे पूर्ण व्यक्तित्व की पूरे विश्व को जरूरत है। वैश्विक तल पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण भी है, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पक्ष को जिया। क्योंकि जीवन के हर पक्ष को, चाहे वो हमारा प्रेम हो, स्नेह हो, वत्सलता हो, करुणा हो, वीरता हो, पलायन हो, टिकना हो, भागना हो, आदर्श हो, आदर्शों को तोड़ना हो, मान्यताएं हो, मान्यताओं को का भंजन करके नई मान्यताओं का स्थापन हो, पुरानी मर चुकी परंपराओं की ठठड़ी बना के फूंक देने की सामर्थ्य और नई परंपराओं को स्थापित करके नव युग में मनुष्यता का मार्ग प्रशस्त करना हो, तो ऐसी पूर्णता लिए भगवान श्री कृष्ण हैं। और मैं निश्चित रूप से, आपने सही कहा, हमारा सद्भाग्य है, हमें भगवान की लीला भूमि पे निवास करने का अवसर मिला है। और अभी तो सबके अंदर सुगबुगाहट है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, ऐसे भगवान की कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होगी, उसके लिए कुछ कुछ लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जरूरत है अपने आराध्यों के मंदिर, उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ जो हमारे आराध्यों का जीवन दर्शन रहा है, उसको अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। नहीं तो आप देखो, हिंदू समाज अपने राम कृष्ण के पूरे जीवन से उतना परिचित नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में वो व्यवस्था है नहीं, और परिवारों में लोग उपराम है। बच्चे देखते हैं बस थोड़ी बहुत छोटी सी पूजा हुई, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। तो मैं समझती हूँ कि हमारे अवतारी महापुरुषों के बारे में इस समय में जितना ज्यादा से ज्यादा इस समय में, इस युग में भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी जरूरत है। तो वो सठे साठ्यम समाचरेत, वीरता का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान ने कहा था वीरता का कोई विकल्प नहीं है, संगठन का कोई विकल्प नहीं है, एकात्मता का कोई विकल्प नहीं है, निष्ठाओं का कोई विकल्प नहीं है। ये सारी भावनाएं हमें समाज के चित्त में रोपनी है, सुशील जी। और आप तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद पर बहुत बड़ी इसकी जिम्मेदारी भी है, और विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही भगवान के जन्म के साथ हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी पर स्थापन हुआ है। इसीलिए भले ही अयोध्या के लिए संघर्ष करके विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या के मंदिर के लिए एक बड़ी पहचान विश्व में बनी है, लेकिन जन्माष्टमी को स्थापन हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण की उन नीतियों पर चलकर पूरे भारत को विवेकपूर्ण जीवन जीना, और उनकी प्रज्ञा में गीता जी हो। देखिए, हृदय में शिव चाहिए सुशील जी, और भुजाओं में शक्ति चाहिए। यही भगवान ने चाहा था, हृदय में शिव रखो और भुजाओं में शक्ति रखो, मुक्ति के लिए साधना करो और संगठन शक्तिपूर्ण बनाकर शांति को स्थापित करो। यही भगवान का संदेश है, जो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हर हृदय तक इसे स्थापित करने की जो है हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। शील जी, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। वैशाली जी, आप लीजिए। ओके, दीदी माँ, आज जन्माष्टमी है और मथुरा और वृंदावन में तो लोग बहुत धूमधाम से
कृष्ण जी का ये त्योहार मनाते होंगे। जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को अपनी दूरदृष्टि से रण के बारे में विस्तार से बताया था, तो क्या आज आप हमारे लिए वो संजय बन सकती है और मथुरा के दृश्य हमें दिखा सकती है? जैसे मथुरा में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, क्या आप हमें बता सकती है प्लीज? मथुरा के प्रत्येक मंदिर में 12 बजे से पहले पहले एक अलग तरह की वैशाली भक्ति भाव से भरी हुई व्याकुलता होती है। 12 बजेंगे, भगवान का प्राकट्य होगा। उसके पहले पूरे मथुरा, वृंदावन, ब्रज क्षेत्र के सभी मंदिरों को बहुत सुंदर, वैसे तो ये दृश्य सारे भारत में होता है, मैं भारत में ही नहीं कहना चाहती, ये तो दृश्य सारे विश्व के सनातन मंदिरों में होता है। और उसके पहले जो है अलग अलग तरह की झांकियां सजती हैं, और जैसे सारे देवी देवता आसमान पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान का प्राकट्य होगा। आसमान बादलों से भरा था, बिजली चमक रही थी, गड़क रही थी, और कारागार में देवकी वसुदेव की जो वो है, जो हाथ पैर उनके हथकड़ियों से बंधे हुए कारागार की कारी कोठड़ी में एक अलग तरह की व्याकुलता थी कि भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान का प्राकट्य होगा। ऐसी व्याकुलता आज सब भक्तों के हृदय में होती है। और जो शालिग्राम जी हैं, उनको जो है केले के पत्रों में, केले के फल में स्थापित कर दिया जाता है, और फिर जो है भजन कीर्तन से दिशाएं गूंजती रहती हैं। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। और फिर वो भक्त भाव से ऐसा कीर्तन होता है जिस कीर्तन में देव जो है वो नर्तन कर रहे हैं। चारों दिशाएं कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार से गूंज रही हैं, और दिशाएं झंकृत है। और सबसे सुंदर जो चीज है वो कि समय आए और भगवान का प्राकट्य हो। और आप समझ लीजिए कि किसी को निमंत्रण तो दिया नहीं है कि आप आओ, किसी को कार्ड भेजा नहीं है कि आप आओ। समस्त विश्व के श्री कृष्ण भक्त जो है वो अयोध्या, यहाँ वृंदावन मथुरा में उमड़ घुमड़ के उनकी सभी दिशाएं इसी तरफ है। और हमारे अभी तक तो, क्योंकि अभी तो उनका शरीर ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रातः स्मरणीय पूज्य छोटी छावनी के महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तो उन्हीं के द्वारा भगवान का प्राकट्य होता है जो, और फिर जो है जय जयकार होती है। और जहां तक मेरे द्वारा संजय की तरह वर्णन करने की बात है, वैशाली मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, कैसे करूंगी। आपने कहा गूंगे को कि गुड़ का स्वाद बताओ, कैसे बताऊं, क्योंकि गुड़ खाके तो अनुभव किया जा सकता है, अब स्वाद को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि सनातन की ये सारी परंपराएं ऐसी जीवंत हैं, इनका कोई विकल्प नहीं। मतलब पूरा रोम रोम आह्लादित होकर भक्ति में भीग जाना। और इन दिनों आप देख रहे हो कि जो हुमस है ना वो बहुत होती है, जो वातावरण में ना जल वायु में ये जल कण बहुत होते हैं, तो वो एक अलग तरह की हुमस पैदा करते हैं। पर किसी को परवाह नहीं है, पसीने बह रहे हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं है, पूरे शरीर से पसीने बह रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। बस एक ही लगन है कि प्रभु का जन्म होगा, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और इसका जो है गूंज चारों तरफ गूंज जाती है। फिर पूरे समय अब चलेंगे भगवान के उत्सव चलेंगे, और नंद उत्सव होगा, फिर छठी का उत्सव होगा, इस तरह, क्योंकि भगवान की ये लीला भूमि है। और हमारे यहाँ जन्म प्राकट्य का उत्सव श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बहुत वैभवशाली होता है। फिर नंदगांव में नंद उत्सव होता है। इस तरह अलग अलग उत्सव अलग अलग मंदिरों में जहां जहां भगवान की वो लीला हुई, वहां वहां ये सब उत्सव होते हैं। और पूरे 15 दिन ये धूम यहाँ मची रहने वाली है। वैशाली दीदी आप कि अच्छा रंजू जी प्लीज। दीदी माँ मैं एक बात कहूँ, गूंगे ने अपना गुड़ का स्वाद तो नहीं बता सका, लेकिन जब मैंने नेत्र बंद कर दिया मुझे लगा मैं मथुरा में बैठा हूँ। धन्यवाद। वही कहना था कि आपने दीदी माँ बोला कि आप कैसे बताएंगी, बट दीदी माँ आपने सच में हमारे आंखों के सामने वो चित्र खड़ा कर दिया। दीदी माँ थैंक यू वेरी मच। तो दीदी माँ अभी
थोड़े आधुनिक इसमें आते हैं हम। जैसे आधुनिक दुनिया में एक हिंदू के कर्तव्य आज युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं के लिए चुनौती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि हम सनातन के जो बीज हैं, सनातन का जो चिंतन है वो अर्वाचीन है और प्राचीन भी है। हैं? हमने हमेशा युग के मुताबिक, आप देखो कि हमारी बहुत सारी स्मृतियां, भले ही मनुस्मृति को लेके बड़ी चर्चा होती है, पर आज से 2500 साल पहले देवल जी ने एक नई स्मृति की रचना की थी। तो युग के अनुसार जो व्यवस्था होती है उस पे परिवर्तन लाकर युगानुकूल दृष्टि दी जाती है। तो अभी जो आधुनिक युग है इसमें ये निश्चित रूप से एक जरूरत लग रही है कि धर्माचारी सब मिलकर इस विषय में एक नई स्मृति की रचना करें और वो अपने समाज को ये बताया जाए कि भाई क्या करना जरूरी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तरुण और हमारे युवा बच्चे हैं उनको उतना सब कुछ उनकी बुनियाद में जो होना चाहिए, उनकी आधार भूमि जो तैयार है, उसके लिए हमें कार्य करने की इस दृष्टि से जरूरत है कि उनको धर्ममयता, धर्म अज्ञता, धर्म के प्रति बोध जागृत कराना बहुत जरूरी है। अभी अभी मैं आपके बीच में आई तो मैं बाहर एक डॉक्टर महिला थी जो मेरे पास दिल्ली से मिलने आई। मैं उनको 2 ही मिनट दे पाई क्योंकि मुझे आपसे बातचीत करनी थी। अब वो डॉक्टर हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर बन गए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, जीवन की सार्थकता की तलाश है। तो आज का युवा जब कल अपने उत्तरार्ध की तरफ बढ़ेगा तो अगर वो भौतिक ही रहा, भौतिकवाद का ही शिकार रहा, तो फिर वो अपने अंदर एक खोखलेपन को अनुभव करता है। 25 साल ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, उसके बाद तो हम सत्य की, तत्व की तलाश करते हैं, अपनी ऊर्जा की सार्थकता तलाशने लग जाते हैं। हमें लगता है कि खाली बच्चों को पालना पोसना ही तो इसी से इतिश्री कर्तव्य की नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि आज के युवा को इसकी तलाश है और इसीलिए आप देखोगे बड़ी जल्दी वो अगर मल्टीनेशनल कंपनी का शिकार बना, यांत्रिक एक एक पल उसका निचोड़ा जा रहा है, तुरंत वो विपස්සना की तरफ भी भाग रहा है। इसको लग रहा है कि मैं समझ लूं मैं क्या हूं, मैं जान लूं मैं क्या हूं। तो हमारे यहाँ धर्म में प्रारंभ से ही बता दिया गया था कि तुम कौन हो। इसी तरह भारत की जो देवियां हैं, भारत की जो स्त्रियां हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है, जबकि उन्होंने बाहर भीतर दोनों को साधना है। बीच का युग तो ऐसा रहा कि गृहिणियां ही रही भारत की स्त्रियां, लेकिन अभी उनको बाहर जो है, उनको आर्थिक दृष्टि से भी उनकी अपनी एक भूमिका है और इसकी जरूरत भी है, इसको नकार भी नहीं किया जा सकता कि वो जाएंगी ही बाहर। लेकिन बाहर से जब वो थक के आती हैं उस समय एक टूटन अनुभव करती है, उसमें संतुलन का अभाव हो जाता है। नहीं तो पहले की देवियां क्या करती थी, ये पति को तृप्त करना है, देखना है कुंडी लगी है कि नहीं, बच्चों ने दूध पी लिया है कि नहीं। अब कभी कभी टीवी के सामने बैठी होती हैं, जॉब से लौट कर दिमाग में चल रहा होता है कि कल टिफिन में क्या होगा, उसकी व्यवस्था मुझी को करनी है। तो ये दोनों तरफ से जो दबाव है, ये है दबाव, और इस दबाव को कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता अगर उसको आध्यात्मिक आधार ना हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो जो तरुण और तरुणियां हैं उनके लिए आध्यात्मिक आधार होना बहुत जरूरी है कि शरीर भले ही परिश्रमी हो पर मन तो संयमी ही रखना पड़ेगा ना, और बुद्धि को विवेकवान बनाना पड़ेगा, प्रज्ञा को जागृत रखना पड़ेगा। और इसकी विधा एक ही है कि आप धर्म को समझो, तब आप सारे कार्यों को निष्प्रिय होके कर सकते हैं। देखिए ये जगत एक नाट्य मंच है, मेरी जो भूमिका है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, वो बड़ी बड़ी प्रामाणिकता से मुझे निभानी है वो भूमिका, लेकिन इसे समझना है ये मेरी भूमिका है, ये मुझे दिया गया पार्ट है, इसके लिए मुझे करना तो है पर इसमें डूबना नहीं है, सुरखुरु होने की भी मुझे विधा मिलनी चाहिए। ये मुझे लगता है। और तरुण और तरुणियां जितना भी यूथ है वो संतों की शरण में, अध्यात्म के जगत में एक बेचैनी है, वो जो इसकी तरफ दौड़ रहा है, जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है वैशाली की, कभी कभी आध्यात्मिक सुख इतना अंतर्मुखी कर देता है
कि हम बाहर की चुनौतियों को स्वीकार करने लायक नहीं रह जाते। और जब हम नहीं समझते चीजों को तो बहुत जल्दी पलायन आता है, बहुत जल्दी हमें लगता है अरे समेटो समेटो और बस घुस जाओ अपनी मांद में, यानी अपनी अंतर गुफा में। वो फिर ठीक नहीं है, ऐसे समाज कमजोर हुए हैं। अगर आप देखो कि भारत के अतीत को देखो कि हमने आंतरिक यात्रा की, अध्यात्म की गहराइयों को छुआ, लेकिन हम उपराम हुए बाहर की तरफ, और जिससे हमारा पाला पड़ा वो तो चंट था, वो तो चतुर था, उसके लिए तो मटेरियल सब कुछ था, उसके पास तो सारी व्यवस्था वही थी, उसका दृष्टि वही था। तो उससे फिर जो है कहीं ना कहीं हमारी उपरामता ने हमें पराजित किया। लेकिन एक दिशा में दो यात्रा, दो दिशा में एक साथ यात्रा, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि हृदय में शिव और भुजाओं में शक्ति। तो यूथ को पहले तो बहुत आकर्षण है संसार का, और जब वहां से धोखा मिलता है तो बहुत जल्दी उपरामता, टूटन, और जब आध्यात्मिक आधार नहीं होता तो आत्महत्या या नशा। आप इसके बिना मनुष्यता को नहीं देख पाओगे। ये भौतिकवाद में मनुष्यता या तो नशे की शरण में जाएगी, या फिर अगर उसको अध्यात्म का आश्रय मिल गया तभी वो बच पाएगी, नहीं तो आत्महत्या। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि दो दिशा की यात्रा एक साथ हो। युवाओं को उस बीज की तरह होना है, जो बीज मिट्टी में डाला जाता है और उसके दो अंकुर निकलते हैं, एक धरती के अंदर की यात्रा करता है और एक आसमान छूने का प्रयत्न करता है। आप देखो उस बीज को, वो जितना नीचे उतरेगा उसका एक अंकुर, उतना ही दूसरा आसमान छूने में समर्थवान हो जाएगा। इसलिए दो दिशा की यात्रा एक साथ यूथ को करना सीखना होगा। इसका वातावरण बनना चाहिए। भारत के अंदर संतों साधुओं को लेके बड़ी उपरामता है, दो चार घटनाएं घट जाती हैं, मीडिया उसका जश्न मनाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि किसी के पतन का जश्न भी मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है, किसी के पतन का जश्न मनाया जाता है, और उस श्रेष्ठ परंपरा के प्रति युवाओं के चित्त में संशय के बीज डाल दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है मनुष्यता का। मैं समझती हूँ कि भारत की युवाओं को, सारे विश्व के युवा को मार्गदर्शन देना होगा, लेकिन एक तरफा यात्रा करके नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, लोग मुझे सुनते होंगे, शायद बुरा भी मान जाए, लेकिन युवा सिर्फ, यूथ सिर्फ अगर भगवान के नाम का जाप करेगा, वो गोमुखी में हाथ डालकर कर्तव्य से भाग के वृंदावन में या जगन्नाथपुरी में बैठ जाएगा, उसकी पत्नी दो दो बच्चों को लेकर भटकेगी उनको पालन लालन करने के लिए, और ये भगवान के नाम पर किसी अलग तरह की मृग मरीचिका का शिकार होकर कर्तव्य छोड़ेगा, तो ये तो उचित नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा दो दिशा की यात्रा एक साथ। धर्म कभी पलायन नहीं करता, धर्म कभी पलायन का संस्कार नहीं देता, धर्म तो कर्तव्य के मैदान में खड़ा करता है। इसीलिए, लेकिन कर्तव्य करते करते आपकी आंतरिक शांति अक्षुण्ण रहे, उसकी विधा आपको देता है। ये आज के युवाओं को, तरुण को, तरुणियों को ये प्रसाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तभी जीवन में संतुलन रहेगा और तभी जीवन महोत्सव बनेगा। जीवन उत्सव बनना चाहिए ना। हम दिन दिन, हम प्रतिपल, हर क्षण हमारे अंदर गजल, हमारे अंदर गीत, गद्य पद्य, तुमने क्या छू लिया कि अब कोई सूरत लगती नहीं पराई, तुमने क्या देख लिया कि बन गई महाकाव्य गीली चौपाई, कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी, जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है। ऐसी भाव दशा करने के लिए अध्यात्म की शरण में आना जरूरी। दीदी माँ, ऐसे लग रहा है कि आपकी बातें सुनते ही जाए। सच में बहुत अच्छे से आप समझा रही हैं, बहुत आपकी वाणी भी मधुर है। हमने 4 पंक्तियां भी आपकी मुंह से अभी सुनी है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बीएचपी थाईलैंड एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजू जी, आप कुछ मैं आदरणीय मिलिंद जी को, वैशाली, हाँ जी, मैं आदरणीय जी विराजमान है,
तो प्रारंभ में मैं उनको संबोधित नहीं कर पाई, बातचीत करना शुरू कर दिया। मैं आपकी पवित्र उपस्थिति को वंदन करती हूँ। आदरणीय सुशील जी के साथ मेरे बहुत नेह के नाते हैं, उनको भी वंदन करती हूँ। वैशाली आपको भी वंदन करती हूँ। और हमारे आदरणीय राजू जी, आपने मेरे लिए प्रश्नों की लंबी लिस्ट बना रखी थी, हमने कहा था उसको थोड़ा छोटा कर दें और हम आपके सारे प्रश्नों को अपने उत्तर में समेट लेंगे। और आप सबकी उपस्थिति को और विश्व हिंदू परिषद के जाज्वल्यमान इतिहास में मेरी भी एक किंचित मात्र भूमिका रही है, इसलिए मैं खुद पे भी अपने को गौरव करती हूँ। और विश्व हिंदू परिषद के साथ मेरी पहचान है, उसके लिए मैं अपने को धन्य समझती हूँ। आने वाले समय में जब भी कभी किंचित मात्र मुझे जो भी सेवा मिलती है, मिलेगी, उसके लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, राम राम, जय राम जी की। दीदी माँ, आपको हमें दीदी माँ, आशीर्वाद देना चाहिए, वंदन नहीं करना चाहिए। आपको चरण स्पर्श है दीदी माँ। हाँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। वंदन क्यों ना करूं, आपके सदकर्मों का वंदन, आपके हर पल देश धर्म के बारे में चिंतन करते हो तो वंदन तो करूंगी ना, इसलिए वंदनीय आप। नहीं, अब हम तो मुझे आपसे छुट्टी दो, प्रेरणा मैं लेने की जाऊं, कोशिश ठीक है? करते हैं कि कुछ कर पावे आपके समान। थोड़ा भी अगर हम आधा % भी कर लेंगे तो अपने आप को धन्य सुंदर है। मानेंगे। मिलिंद जी, मेरा आपसे अगला सवाल है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में हुई थी और उस वक्त पर्पस बताया गया था कि टू ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट द हिंदू सोसाइटी एंड टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द हिंदू धर्म। ना 57 सालों के बाद आप इसको अभी तक वहीं पर उसको कुछ ऐड किया है उसमें, बिकॉज विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस वी ऑल चेंज, द सोसाइटी चेंजेस, और आप कहाँ तक सक्सेसफुल रहे हैं और आगे आपका एम्स क्या है? ऐसा है, मूल्य या ध्येय तो बदलता नहीं और ध्येय कभी ओझल भी नहीं होता है। तो हिंदू समाज को सुरक्षित रखना, हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज का गौरव बढ़ाना, यही लक्ष्य है और वही लक्ष्य बना रहेगा। चुनौतियां बदलती हैं, इतना ही फर्क गिरता है। विश्व हिंदू परिषद ने, जैसा पूज्य दीदी माँ ने कहा, यह राम जन्मभूमि के माध्यम से एक बहुत बड़ा जागरण कर दिया। उस कारण से समाज की सोच और राजनीति की अवस्था दोनों भी बदल गई। तो एक बहुत बड़ा काम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूज्य संतों के आशीर्वाद से यह संपन्न हुआ। अगर अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे हम देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो हिंदू समाज का भोले भाले ऐसे हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आज जो जड़वादी विचारधारा है कम्युनिस्टों की, वह भी बुद्धि भ्रमित कर रही है और धर्म से समाज को दूर लेके जा रही। आज अतिवादी ऐसे इस्लामिक आतंकवाद की चुनौती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बाहर से आक्रमण कर रही है। और फिर हिंदू समाज के अंदर की कुछ चुनौतियां हैं कि हम अपने विचारधारा से, अपने जीवन मूल्यों से समाज करके कुछ दूर हटे हैं। तो अस्पृश्यता, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियां और कुप्रथाएं हमारे में आ गई है। तो एक आत्मशुद्धि, आचरण से अपने तत्व के पास जाना और बाहर की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना, तो ये सारी बातें अभी भी करने लायक है। गोरक्षा का बहुत बड़ा काम है। ये सारा काम करना, यह अभी आगे की दिशा विश्व हिंदू परिषद की है। इसमें कुछ प्रगति भी हुई है। सुशील जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, इस जन्माष्टमी के दिन 1964 में मुंबई के पवाई चिन्मयानंद मिशन में जब ये मीटिंग हुई थी, वहाँ पर सिर्फ हिंदू नहीं थे, लेकिन सनातनी, लेकिन गैर हिंदू लोग भी थे। उनका क्या रोल था इस स्थापना में? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं हमें? देखिए, आप जो पहला शब्द कहा कि गैर हिंदू, तो वो शब्द ही गलत है, क्योंकि हमारी हिंदू की व्याख्या, हिंदू धर्म की व्याख्या बहुत बृहद है और उसे हम एक संकुचित दायरे में नहीं डाल सकते हैं।
उसमें जो भी गणमान्य लोग उपस्थित थे, वो एक डिफरेंट, उनका एक नजरिया ही डिफरेंट था। उस समय भी राष्ट्रीय सेवक सेवक स्वयंसेवक संघ थे, उनके सर्वाधिकारी हमारे गुरु जी ने ये स्थापना किया था। तो उनको क्यों लगा कि इसकी जरूरत है एक अलग संस्था जो भी हिंदुओं की रक्षा कर सके, हिंदुओं को के वो इकट्ठा कर सके, उसके क्यों किया जाए, ये एक था। तो इसमें मैं मिलिंद जी को बोलूंगा और भी ज्यादा विस्तार से बताने कि उसमें कौन कौन उपस्थित थे, क्यों थे, और उसका और ये धर्म की व्याख्या जो हम हिंदू बोलते हैं उसमें जो संकीर्ण व्याख्या होती है, उसके बारे में मिलिंद जी बहुत अच्छे वक्ता है, और उनमें उनका अधिकार ज्यादा है मुझसे, और ज्यादा निपुण भी है इसमें। तो मैं आग्रह करूंगा मिलिंद जी से कि इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, जो भ्रम फैला हुआ है पूरे उस समय विश्व तो में। जी सुशील जी, ऐसा है कि उस समय तो बहुत बड़े बड़े विचारवंत विद्वान और संत पूर्ण देश भर के विविध धर्म धाराओं के, जिनका जिनका भारत में जन्म हुआ है, वो सारे लोग उपस्थित थे। मैंने जैसा कुछ नाम लूं तो आज मास्टर तारा सिंह तथा अकाली दल खालसा के उस समय के अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह, ये दोनों भी उस समय उपस्थित थे। और मास्टर तारा सिंह जी और सरदार भूपेंद्र सिंह जी, इन्होंने प्रत्यक्ष उस समय ये कहा कि हिंदू सिख अलग अलग नहीं है, और यदि सिखों को यदि श्रेष्ठ स्थिति में जाना है तो हिंदू धर्म की रक्षा बहुत आवश्यक है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्होंने कहा कि गुरुमुखी में अपने ही पुराणों से, उपनिषदों से, वेदों से और हमारी परंपरा से सारा ज्ञान लेकर समझाया। तो इसलिए वहां सिख हिंदू नहीं है, ये भाव ही नहीं था, दोनों एक ही यही भाव था। वैसे ही हम देखेंगे कि तिब्बत के जो मुख्य लामा थे, जिनको रिनपुचे कुशल बकुल जी कहते हैं, उनका संदेश आया था और उन्होंने भी बहुत बहुत कामनाएं इसके लिए दी। उसके बाद में हम देखेंगे कि जब 2-4 महीने के बाद में सब लोग एकत्र आए, क्योंकि उस समय तो केवल विश्व हिंदू परिषद का संकल्प हुआ, मगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और सारे लोग नियुक्त हुए, वो दिल्ली में नियुक्त हुए। तो वहां पर स्वयं सुशील मुनि जी उपस्थित थे, जैन संत। वैसे ही हम देखेंगे कि रिंपोचे जी का जो नाम लिया, वो तिबेटी लामा यानी बौद्ध मत के थे। तो आर्य समाज हो, बौद्ध मत हो, सिख हो, जैन हो, आर्य समाज के हो, सनातनी हो, शैव हो, वैष्णव हो, जितनी धर्म धाराएं इस पवित्र भूमि में जन्मी थी, वो सब लोग विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के लिए एकत्र आए और सबने इसकी आवश्यकता समझी, क्योंकि इस महासागर के हम अंश है, इस हिंदू महासागर के, ऐसा वो मानते थे, इस विचारधारा के, इस तत्व ज्ञान के। इसलिए जैसा सुशील जी ने कहा, गैर हिंदू ये शब्द ही उचित नहीं है। भारत में सिद्धांतों की विविधता है, किंतु एक ही तत्व यह सब लोग कोई मानते हैं। कर्म आधारित यह तत्व है, और यह कर्म आधारित तत्व पुनर्जन्म, पूर्व जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानने वाला है। ऐसे सारे लोग एकत्र आए। मिलिंद जी, मैं आपको दादा कहूंगी। एक तो मराठी है आप, तो थोड़ा वो अटैचमेंट हो जाता है। दादा तो मेरे ख्याल से वो सही रहेगा, मैं आपको मिलिंद दादा कह के बुलाऊंगी। तो मिलिंद दादा जी, मुझे एक बताइए कि वीएचपी सदस्यता की राष्ट्रीय संख्या क्या है, और वीएचपी की उपस्थिति कितने अन्य देशों में है? और एक सवाल है कि भारत के बाहर कितने देशों में वीएचपी संघ से जुड़ा कोई संगठन है? ऐसा है कि सदस्यता यह शब्द प्रयोग विश्व हिंदू परिषद में वैसे है नहीं। हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो हितचिंतक यानी सिंपथाइजर, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो भारत में लगभग 34 लाख लोग इसके सिंपथाइजर, 34 lakhs, दैट इज 3.54 मिलियन अन्य भाषा में बोलना है तो।
विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के समय ही एक मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व भर के अनेक देशों में जो हिंदू समाज अनेक कारणों से गया हुआ है, तो उसको जोड़ के रखना, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। अभी लगभग 29 देशों से ज्यादा देशों में विश्व हिंदू परिषद का कार्य यह एक संगठन के रूप में चल रहा है। यह जो एक हिंदू विचार परिवार है, तो एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस हिंदू विचार परिवार का यह फाउंटेन हेड है एक तरीके से। और जैसा कि कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गोळवलकर गुरु जी स्वयं उपस्थित थे, और उनकी प्रेरणा से ही, उनके प्रयत्न से ही यह कार्य प्रारंभ हुआ। और इसलिए संघ विचार से विश्व हिंदू परिषद जुड़ा हुआ है, किंतु एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है कि जो संघ की जो एक हिंदुत्व की अवधारणा है उसको भी मानता है और अपनी धर्म संस्कृति को मानकर उसकी रक्षा के लिए कार्य करने वाला अपना यह संगठन। मिलिंद जी, VHP वेबसाइट में ये लिखा है कि VHP हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस, और आपने जैसे बताया 3.4 मिलियन इज द सिंपैथाइजर्स ऑफ द VHP। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अर्बन एरियाज में जहाँ पर आजकल वी कैन सी अ लॉट ऑफ influencers are arising from the urban areas also. I may be wrong in that, but that's what I have the impression. आप उनके लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए क्या प्रोग्राम्स है आपके? ऐसा है कि 34 lakhs मैंने कहा कि हमारे सिंपथाइजर्स है, मगर बेसिकली हम सदस्यता क्यों नहीं कहते कि हम समझते हैं कि एवरी बॉर्न हिंदू इज अवर, तो इसलिए ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है, तो हम यह एक टर्मिनोलॉजी और एक प्रयास करते हैं। अभी जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्टिल भारत इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। ग्रामीण क्षेत्र में भारत बसा हुआ है, भारत की आत्मा भी बसी हुई है। फिर भी आज अपना जो कार्य है, मैं ये कह सकता हूं कि भारत के प्रैक्टिकली एवरी डिस्ट्रिक्ट और एवरी तहसील, जिसको प्रखंड भी कहा जाता है, वहां तक प्रैक्टिकली अभी पहुंच गया है। और इसका अर्थ कि एवरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर एंड प्रखंड सेंटर, तहसील सेंटर तक, तो जो ऐसे 40-50 हजार के पॉपुलेशन के जो टाउन्स है से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ के पॉपुलेशन की जो मेट्रो सिटीज है, वो सारे जगह पर विश्व हिंदू परिषद का यूनिट इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हमारा है। आपने कहा है कि VHP operates many projects at grassroots level which makes a difference in the fields of, now I'm quoting this from a press statement, वेबसाइट the field of education, primary health care, economic self-reliance, women empowerment and skill development. My question is, what projects is the VHP undertaking to educate our youth about our culture, tradition and religion, and basically the Sanatan Dharma? Usually we are undertaking activities for this purpose. Our youth wings, Bajrang Dal and Durga Vahini, these both are working in that youth group. And there we have kept 3 guiding principles. One is Seva, second is Samskar, and third is Suraksha. So as Didi Ma has said, that हृदय में शिव चाहिए और हाथ में शक्ति चाहिए, और इसलिए ये दोनों तीनों विषय हैं। ये अपना समाज है, इस समाज का दुख कष्ट हमको दूर करना है, और इसलिए सेवा से रत होकर हमको इस समाज का दुख कष्ट कम करना चाहिए, और सेवा करके उनको परावलंबी नहीं बनाना चाहिए, सबके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। और इसलिए देने वाले ने देते जाना है, लेने वाले ने लेते जाना है, मगर एक दिन लेते लेते देने वाले की दानत लेती, तो लेने वाला देने वाला बने, यहां तक इस सेवा ने लोगों को लेके जाना है। तो हम जो सेवा कर रहे हैं वो इस भाव से कर रहे हैं। तो आज हजारों सेवा प्रकल्प इस माध्यम से चल रहे कि सम ऑफ देम यू कोटेड। दूसरा विषय हम लेकर चलते हैं वो संस्कार का है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही
हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए, उनके प्रचार के लिए हुआ है, और उसके ऊपर जो जो आक्रमण होंगे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी हुआ है। तो आज बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी दोनों के माध्यम से स्वदेशी का संस्कार है, जो हिंदू कुटुंब पद्धति, उसके पारिवारिक संस्कार है, उसको बढ़ाने के लिए हम कार्यक्रम लेते हैं। नशे से मुक्ति के लिए हम संकल्प भी दिलवाते हैं और उनसे कार्यक्रम भी करवाते हैं। समाज में इस पिछले 1,500-2,000 वर्ष के संघर्ष के कालखंड में अनेक सामाजिक कुरीतियां आ गई। दहेज है, छुआछूत जैसा विषय है, कन्या भ्रूण हत्या जैसा विषय है। तो इस विषय के बारे में युवकों में जागरण करना और उनका मन और आचरण इन सामाजिक कुरीतियों से दूर लेके जाना, इसका प्रयास होता है। सामाजिक वृक्षारोपण है, चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी एक एश्योरेंस, एक हेल्थ एश्योरेंस देने की दृष्टि से क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रोत्साहन देते हैं। तो देश, धर्म और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य का भाव जगाना। कर्तव्य क्या है? इसकी सेवा करना, इसकी रक्षा करना। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम ये लिए जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम देखेंगे सुरक्षा के मुद्दे, कि यूथ है तो शक्ति है और उनके पास शौर्य है। तो ये शौर्य और शक्ति को यह हिंदू समाज की रक्षा के काम में लगा। जैसे आज बहुत बड़े प्रमाण में गोहत्या हो रही है, उसको रोकने के लिए आज बजरंग दल यानी विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। वी आर सेविंग मोर देन like 1.5 lakh गोवंश फ्रॉम द बुचर्स, एक्चुअली जो कानून तोड़कर उसकी कत्ल कर रहे हैं। तो यह बहुत कलेजे वाला काम है, बहुत धैर्य का काम है, साहस का काम है। आज हम देखेंगे कि लव जिहाद की शिकार बहुत सारी हमारी बहनें हो रही। तो आज इन बहनों को बचाने का सबसे बड़ा काम बजरंग दल करता है। धर्मांतरण हो रहा है, तो उस कारण से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, भारत में विभाजन करने की शक्तियां बढ़ रही है, और इसलिए धर्मांतरण को रोकने के लिए भी बहुत बड़ा प्रयत्न हो रहा है। तो ऐसे आक्रमण के जो अनेक मुद्दे हैं, उसके लिए समाज ने, देश और समाज धर्म की रक्षा के लिए एकदम साहस से खड़ा होना चाहिए, संस्कार हम जगाते हैं। आज बजरंग दल में से अनेक लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में जाते क्योंकि हम देशभक्ति सिखाते। तो देश की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए मैंने कुछ न कुछ करना चाहिए भाव लोगों के हृदय में जागृत होता है। तो ये तीनों दृष्टि से, सेवा, अच्छे संस्कार और फिर साहस से आक्रमण का मुकाबला करने वाला युवक खड़ा करना, ये काम हम अपने दोनों यूथ विंग्स बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी दोनों को माध्यम से करते हैं। अभी जो आपने बातें कही about these changes, these are what we are doing to defend the wrongs, right? Breaking the law. Now there are other aspects of which require like the wrongs and the ills that have been going down the centuries, and which are also in the constitution. And many people say that we do need some constitution amendments and some new laws which is necessary to make sure that every Bharatvasi has an equal opportunity of whatever religion he professes. So where do you see the next I'm sure COVID-19 would have put a dampener on this, but what do you see for forthcoming in the near future as far as government introduced laws and changes are concerned? Usually we will see that the society is beset with many challenges and problems. So no organization can tackle all of them. So Vishwa Hindu Parishad has decided which fields of such requirements we will tackle. And some of the things I described before was actually field work. But there are many things that Vishwa Hindu Parishad is doing to make policy, changes, how the government should formulate policies, what laws it should make. So though there was COVID, this pandemic was going on for last 1.5 years,
I am very happy to say that Vishwa Hindu Parishad has contributed and done policy intervention in many matters even during COVID into this pandemic. जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, बाद में उत्तर प्रदेश है, these are big states. हिमाचल is a small state. उत्तर प्रदेश is a big state. गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है. तो इन कुछ राज्यों में गोरक्षा के कानून और साथ में धर्मांतरण को विरोध करने वाले कानून यह सरकार ने पारित किए, राज्य सरकारों ने. So because we are concerned with all issues that affect Hindus, so we definitely gave our input in formulating these laws. We very constructively interacted with the bureaucracy as well as the government that is sitting in that state and gave them our viewpoint, and whatever our think tanks have done, those things we have contributed. And I'm proud to say that Vishwa Hindu Parishad has contributed in formulating these policies which are up to date right now. Secondly, we are dealing with now two issues that affect Hindus. One is about the control of temples by the government. Vishwa Hindu Parishad feels that the society should handle the temples. Government has no business handling temples. And it is a discriminatory practice because they are not handling churches or masjid. So if the government very discriminately, if it handles only temples, then it is not a practice that should be encouraged. It is a practice that should be stopped. और इसीलिए अभी मंदिरों का संचालन कैसा होना चाहिए, समाज में मंदिरों का पालन यानी सारा संभाल कैसा करना चाहिए, how the government should hand over thousands of temples that it is handling to the society, ये सारे विषयों को लेकर अभी हम लोग कुछ लॉज फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डिसीजंस इस दृष्टि से आए हैं कि वेदर इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंटरफियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल्स और नॉट. तो वो सारे संकेत लेकर हम लोग भी इसके लिए एक अभी लीगल थिंक टैंक बनाई हुई. दूसरी बात हम जो ध्यान दे रहे कि स्टेट लेवल पे धर्मांतरण के कानून बन रहे हैं, मगर हम यह चाहते हैं कि देयर शुड बी अ सेंट्रल लॉ फॉर द धर्मांतरण, स्टॉपिंग धर्मांतरण और मतांतरण. तो इसलिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए अभी बहुत बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरीज की एक थिंक टैंक अभी बैठी है हमारे साथ में, वह भी काम हम अभी कर रहे हैं. हिंदू सक्सेशन लॉज भी है कि जिसमें they are discriminatory for Hindus because they have been formulated by previous governments. तो ये सारे भी करेक्ट करने की दिशा में जा रहे हैं. तो ऐसे many issues are there that Vishwa Hindu Parishad is contributing in that, and definitely our contribution will be seminal also, as well as it will be at field level. आपने शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं कहा कुछ. इज दैट आल्सो ऑन द प्लानिंग स्टेज? Yes, ऐसा है कि it is a very complicated topic और well thought out plan should be taken up for that. तो उसके बारे में भी कुछ बातें चल रही है, but they are not in mature stages right now. Now what I say may be controversial, but historically many people believe that the invaders जो आक्रमणी आते थे भारत में, आके आक्रमण करके लूट कर चले जाते थे, उनकी सफलता सिर्फ इस बात पे रहती थी कि हमारे में एकजुटता नहीं थी, एक यूनिटी नहीं थी. क्या आप ये मानते हैं कि ये सही है? और अगर मानते हैं सही है तो ये आज भी यही बात है क्या, और इसको हम इसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं? ऐसा है कि एकजुटता नहीं थी, ये भी सत्य है. अवेयरनेस नहीं था, यह भी सत्य है. और इसलिए हम कहते कि हमारे अंदर की जो एकात्मता कमजोर हुई थी बिकॉज ऑफ दिस वीकनिंग ऑफ फीलिंग ऑफ यूनिटी. तो इसलिए इसको जागरूक करना यह विश्व हिंदू परिषद अपना काम मानती है. और इसीलिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कास्ट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब लैंग्वेजेस, देयर आर मेनी प्रांत, देयर आर मेनी संप्रदायज. तो ये जो विविधता है दुर्भाग्य से हमारी विरोधी
इसको विभेद करके प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ये प्रयत्न है कि ये विविधता है, एंड इट इज नॉट अवर वीकनेस बट इट इज अवर स्ट्रेंथ। बट व्हाट आर द थिंग्स दैट बाइंड अस टुगेदर? तो एक धर्म, एक संस्कृति और एक मातृभूमि, ये तीन बातें हम सब में समान, और ये तीन बातें समान है इसलिए हम सब लोग एक है। तो इस देश, धर्म और संस्कृति के प्रति भक्ति की जागृति करना, यानी अपनापन जागरूक करना, और साथ में कर्तव्य का भाव कि मैंने इसकी सेवा करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्य का पूर्ण स्वरूप यही है, ये भक्ति का भाव और इस सेवा का, कर्तव्य का, सुरक्षा का भाव जागरूक करना। ये यदि हम इनहेरेंट एक रीति से कर सकेंगे तो हमारा यश निश्चित होगा और आने वाला है। जैसे कि हम कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद ने एक सूत्र दिया कि हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, यानी क्या, कोई भी हिंदू पतित नहीं है। और दूसरी बात, हम सब सहोदर है, ये एकात्मता का संदेश। और फिर हमने कर्तव्य बता दिया कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हर हिंदू ने अपने धर्म समाज का कार्यकर्ता करके खड़ा होना चाहिए और रक्षा का व्रत लेना चाहिए। और मंत्र क्या है? तो मम मंत्र समानता, कि हम सब एक है, समान है, समरस है, ये भाव हृदय में लेना। तो विश्व हिंदू परिषद पूर्ण सभी कार्यों से यही दिशा दे रही है। आपसे बातें करने का तो बहुत दिल करता है और लंबा चलता है, लेकिन बिफोर आई लेट यू गो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो करोड़ों सनातियों, विश्व भर के सनातियों के दिमाग में है, दिल में है। दरअसल राम जन्मभूमि का रास्ता हमने कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लिया। एवरीथिंग वाज नाइस। नाउ द क्वेश्चन एंड द ड्रीम ऑफ एवरी हिंदू इन द वर्ल्ड इज काशी और मथुरा। ये सपना कब पूरा होगा? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जरूर आया है, मगर वो डिसीजन भी इसलिए आया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 500 वर्षों से हिंदू समाज ने संघर्ष और बलिदान किया है। उस संघर्ष और बलिदान के बिना ये निर्णय संभव नहीं था। और इसलिए जस्ट टू से दैट वी गॉट इट थ्रू कोर्ट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हिंदू समाज के निरंतर संघर्ष, बलिदान, और अभी 1984 से जो विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आंदोलन किया, इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दैट राम जन्मभूमि आज हिंदुओं को मिली है। अभी हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस यह है कि राम जन्मभूमि के ऊपर भगवान का मंदिर बन जाए। दैट इज द प्रायोरिटी। हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर है। और मुझे लगता है कि अगले 3 वर्षों के अंदर भगवान श्री रामलला अपने गर्भगृह में, अपने स्वयं के घर में विराजमान हो जाएंगे। दैट्स अ डेफिनेट थिंग। श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का जहां तक सवाल है, हिंदू समाज का संकल्प है कि हिंदू समाज यह कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर प्राप्त करके रहेगा, गौरव से प्राप्त करके रहेगा। और मुझे लगता है हिंदू समाज का संकल्प है, तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में वह संकल्प भी पूर्ण होगा। I do hope that नहीं राजू जी, मैं मिलिंद जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो आपने पूछा है, अभी जो आज के जो अपने आधुनिक हिंदूज हैं या जो बहुत पब्लिक है, जब हम विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं तो उनके दिमाग में पहला जो पिक्चर आता है कि बजरंग दल, है ना, और उनको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद खाली बजरंग दल ही है। जबकि विश्व हिंदू परिषद 200 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है, सेवा कार्यों में लगती है। तो उसके बारे में मिलिंद जी थोड़ा कुछ विस्तार से बताएंगे, और कैसे इसको अपने जन जन तक पहुंचने का क्या आपका, कैसे आपका कोई प्लान है, या क्या, कैसे उसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? ऐसा है कि ऑर्फनेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कुटीर उद्योग हैं, स्किल डेवलपमेंट है,
ऐसे अनेक तरह के सेवा प्रकल्प विश्व हिंदू परिषद आज चला रही है और बहुत बड़े प्रमाण में जो एकल विद्यालय चल रहे हैं उनको चलने में भी बहुत बड़ा सहयोग विश्व हिंदू परिषद यह करती है। तो यह कार्य है कि जो लगभग 1 लाख से अधिक गांवों तक पूर्ण देश भर में फैला हुआ है। साथ साथ में जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं उसमें भी बहुत बड़े प्रमाण में विश्व हिंदू परिषद ने यह सेवा कार्य किया है। अभी जो कोरोना पैंडेमिक हुआ है तो पहली लहर में जो फर्स्ट वेव आई, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भारत में मोर देन 2.25 करोड़ यानी फूड पैकेट्स का वितरण लोगों में किया गया है। दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड ओवर 2.4 मिलियन फैमिलीज को फॉर 2 मंथ्स कंटिन्यूअसली हमने संपूर्ण जितना भी रेशन चाहिए था पूर्ण फैमिलीज को 2.4 मिलियन फैमिलीज को यह विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से दिया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, थाईलैंड से भी बहुत बड़ी सेवा भारत में इस माध्यम से हुई है और साथ साथ में मुझे लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक्स हैं, अलग अलग तरीके से यह सेवाएं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से समाज की हुई है। तो बहुत बड़ी सेवा का कार्य पहले भी हुआ है, आज भी चल रहा है। साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि समाज तक ये विषय लेके जाना चाहिए क्योंकि समाज में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। आज जब 24 लाख युवक अकेले बजरंग दल के साथ में जुड़े हुए हैं एंड विश्व हिंदू परिषद इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो आज ये कोई छोटी संख्या नहीं है। तो यूथ को यदि बजरंग दल नहीं अच्छा लगता या विश्व हिंदू परिषद नहीं अच्छा लगता तो इतने बड़े प्रमाण में कोई जुड़ता नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो सबको अच्छे लगते हैं मगर मेरा बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज बने ऐसा कितने लोगों को लगता है? यह जो है इस कारण से कई लोगों को थोड़ा विश्व हिंदू परिषद की कुछ गतिविधियों के बारे में बातचीत करने में संकोच होता होगा क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है तो जीवन में 273 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। हर युद्ध में निकट के लोगों की मृत्यु होगी, बलिदान होगा, कष्ट होगा, जेल जाना पड़ेगा। तो यदि एक कहावत है कि कीर्ति चाहिए तो सुख नहीं मिलेगा और सुख चाहिए तो कीर्ति नहीं मिलेगी, समर्थ रामदास स्वामी जी का यह वाक्य है। तो आज जब हिंदू सुरक्षा के बिंदु आएंगे तो हम तो सुरक्षित रहना चाहते हैं मगर वी डोंट वांट टू वर्क फॉर इट, ऐसा जब की मानसिकता है, ऐसे कुछ लोगों को शायद परिषद की कुछ एक्टिविटीज के बारे में संकोच हो सकता है। आई डोंट ब्लेम देम, हर एक का स्वभाव होता है, मगर परिषद में सुरक्षा के अलावा भी सेवा की, समरसता की, गोरक्षा की, बहनों के, बच्चों के अनेक प्रकार के कार्य है, मंदिरों के बारे में कार्य, एवरीबडी कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। हर एक के लिए यहाँ पर काम है। मुझे तो लगता है कि संगठन का भी विषय नहीं है कि हर एक हिंदू अपने धर्म और समाज का कार्यकर्ता बनकर खड़ा रह जाए कि तो हिंदू का कल्याण हो जाएगा। वही हमारा, वी हैव नो अभिनिवेश कि हमारे ही कार्यकर्ता बने, मगर हर हिंदू अपने धर्म, समाज और संस्कृति का संरक्षक बने, उसका सेवक बने, उसका आचरण करने वाला बने, यह हम चाहते हैं। मिलिंद जी, इसमें एक और है, जैसे इस पे आपने प्रकाश नहीं डाला कि आज जो भी काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाने, भले वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, क्योंकि जब तक लोगों को मालूम नहीं होता उनकी धारणाएं चेंज नहीं होती है, तो उसको चेंज करने का, उसको पहुंचाने का आपने क्या प्रयत्न कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी तक हम केवल वेबसाइट चलाते थे, मगर अभी वेबसाइट के साथ में अभी ट्विटर, फेसबुक, इस तरह के विषय भी विश्व हिंदू परिषद ने वेरी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड। देन वी हैव स्टार्टेड, नाउ वी हैव गॉन ऑन टू इंस्टाग्राम also we have developed now our magazines that are published every 15 days or some places every week.
तो भारत में जो 15-16 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है उसमें भी अभी हमने अलग अलग ट्विटर हैंडल्स और अलग अलग फेसबुक अकाउंट शुरू किए हैं। तो हर एक कोई अपने अपने भाषा में पढ़ना चाहता है। वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु रीड इन देयर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। तो भारत तो बहुभाषिक देश है, तो इसलिए अभी सोशल मीडिया का आधार लेकर हमने यह विषय अभी प्रारंभ किया। वी स्टार्टेड ओनली 1 or 2 years ago on these modern platforms। और अभी पूर्ण देश भर के हर प्रांत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तीनों के दृष्टि से अभी टीम्स फॉर्मुलेट होना यह शुरू हो गई है। साथ साथ में हम लोग अभी कंटेंट जनरेशन, भारत के हर भाषा में कंटेंट जनरेशन की तरफ ध्यान देंगे, इस तरह की भी टीम्स बढ़ा रहे। तो एक आउटरीच बनाने के लिए हमारा कार्य और हमारी आइडियोलॉजी, इसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स का सहारा भी विश्व हिंदू परिषद भी लेगी। मगर साथ में हमारा यह विश्वास जरूर है कि एक्चुअल पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट यह सबसे पावरफुल माध्यम है। जैसे कि राम जन्मभूमि के इस अभियान में ओनली विद इन 45 days विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने मिलकर वी वेंट टू 5,34,000 villages। दैट हैज नॉट बीन डन एवर भारत के इतिहास में। तो 5,34,000 गांव तक हम गए एंड वी कॉन्टेक्टेड 12 crore 74 lakh families आई एम सेइंग, नॉट पीपल, फैमिलीज। हमको ये ध्यान में आया कि फेसबुक तो बहुत लोगों के पास है, मगर ट्विटर तो कोई देखता ही नहीं है, पेपर तो कोई पढ़ता ही नहीं है, टीवी में न्यूज तो कोई देखता ही नहीं। तो many mediums what that we talk about, nobody is really bothered about them, but we should be on them। real thing is live contact। तो दोनों भी बातें हम करें, इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न मीडियम्स का भी उपयोग करेंगे, बट वी विल नॉट बी ओनली कैरिड अवे विद देम। लाइव पीपल कांटेक्ट, मीटिंग पीपल, कन्विंसिंग पीपल, ensuring their participation is the real thing। we will concentrate more on that also। आप कुछ संदेश अपने जो विश्व हिंदू परिषद की भारत के बाहर जो शाखाएं हैं या संस्थाएं हैं, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है सुशील जी कि अभी जो हिंदू पूर्ण विश्व भर में फैल रहा है वो हिंदू क्वालिफाइड है, पावरफुल है, एजुकेटेड है। और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय सभी के मन में यही था कि जो हिंदू विश्व भर में बसा हुआ है, दैट हिंदू शुड बिकम द एम्बेसडर ऑफ हिंदूज कल्चर। और उन्होंने जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में हिंदू संस्कृति और धर्म इसके ध्वजवाहक बनकर, इसके एम्बेसडर बनकर खड़े होना चाहिए। क्योंकि ईसाईयत है, इस्लाम है, कम्युनिज्म है, इससे शांति नहीं बढ़ रही है, इससे संघर्ष और असमाधान ही बढ़ रहा है। पूर्ण विश्व को शांति और समाधान केवल हिंदू संस्कृति दे सकती। और इसीलिए जो हमारे हिंदू भाई और बहन सभी देशों में बसे हुए हैं और उनमें विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है, तो हर जगह के विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर बहुत ताकतवर हिंदू संगठन खड़ा करना चाहिए। और संपूर्ण विश्व कल्याण की कैपेसिटी और दायित्व भी मैं कहूंगा यह हिंदू धर्म विचार का है, हिंदू संस्कृति का है। तो उस कार्य के लिए अपने संगठन को वहां योग्य बनाना चाहिए, उसके नेतृत्व आप सबने करना चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। हम सब लोग आपके साथ, बिकॉज वी आर नॉट टू, वी आर वन, यही मेरा कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी आगे ले लीजिए आपका जो भी। Shri Milind ji, that was very inspiring, especially the last part. And firstly, I want to thank you on behalf of Sushil ji and our association in Thailand, that you have given us a lot of your valuable time, yourself and Didi. I know Didima and you are very, very busy. I understand you're traveling all over the country at this time, but to give us such time,
We are very, very honored and thank you very much. But before I go, I want to make a pledge to you. आपने कहा कि भारत के बाहर हम सभी को हिंदुओं का एम्बेसडर बनना है. I think I have the confidence of my president and the executive committee of the VHP Association Thailand, and on behalf of all the members that we have in our association and our friends and family, we promise that we will definitely be the ambassadors of Hindu in this part of the world. Thank you very much for your presence धन्यवाद. and for your wonderful talk. Thank you so much. Dhanyawad. थैंक यू मिलिंद जी, बहुत बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. वक्तव्य देने के लिए। धन्यवाद. और मैं भी ये कहूंगा कि यू हैव माई कॉन्फिडेंस एंड बेस्ट विशेस, एंड डेफिनेटली इन धर्म कार्य वी आर ब्रदर्स. धन्यवाद. जय Jai श्री Shri राम. Ram. जय श्री राम। दीदी नमस्कार. दीदी माँ आपको वो चरण स्पर्श। वैशाली ताई नमस्कार. Okay, I will end the meeting now. Okay. Okay, thank you. Thank you. धन्यवाद. One more time. जय श्री Vaishali, राम. I'm ending meeting for all, okay? जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सभी को. आप आइलैंड के सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. हमारी तरफ विश्व से हिंदू भी परिषद के भारत में स्थापना सबको दिवस पर जन्माष्टमी भी की शुभकामनाएं. शुभकामनाएं. भारत में सबको शुभकामनाएं जन्माष्टमी की.